शाहरुख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहरुख, आज आपकी बर्थडे है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक शेर सुनाना चाहूँगी। आप सलामत रहें 1000 बरस, आप सलामत रहें 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वाह 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 वाह। और शाहरुख, अब सवाल है। शाहरुख, अब सवाल है। रेखा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। शुक्रिया, शुक्रिया शाहरुख। अब सवाल ये है कि हर साल एक बर्थडे होता है, लेकिन माशाल्लाह आप हर बर्थडे के साथ, एक जन्मदिन के साथ आप बहुत ज़्यादा जवान होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती जा रही है, बहुत अच्छे रोल्स आ रहे हैं माशाल्लाह। आप अपने करियर और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर साल जब बर्थडे होता है कोई ना कोई रेजोल्यूशन, कोई ना कोई बची हुई बात, कोई ना कोई आस उम्मीद जो कि पिछले कभी नहीं कर पाए हों, वो एक उम्मीद रहती है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कुछ बचा हुआ जो आप इस साल करना चाहेंगे, वो जानना चाहते हैं। अब मैं, क्योंकि ऐसा सब लोग बोलते हैं, मुझे तो लगता नहीं ऐसा। 18 साल की उम्र में एक बर्थडे होता है, फिर 21 साल की उम्र में होता है, फिर 40 में होता है, देन फिल्म इंडस्ट्री में 50, 75, 100, इंशाल्लाह 125 ऐसे लैंडमार्क्स होते हैं। तो क्योंकि 50वां जन्मदिन है, तो ऐसा हाफ सेंचुरी हो गई मेरी, तो मैं सिर्फ ये रेजोल्यूशन कर सकता हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे, मैं ज़्यादा स्माइल करूँगा अब। तो अगले 10, 20, 25, जब तक मैं 75 का होऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा स्माइल करूँगा। दैट्स द रेजोल्यूशन आई हैव। बाकी अगर आपकी तवक्को है कि मैं कोई गंदी आदत छोड़ दूँगा, बिल्कुल नहीं, वो मैं करता रहूँगा। अब तो आधी ज़िंदगी हो गई, अब तो अलाउड है। What's your thought on turning 50? What's my Thought on turning 50? You know, I was driving my kids back to the airport just now. They left for London in the morning. They had to get back to school. And to me, it does not make a difference. मुझे ऐसा लगता है पिछले साल हम ऐसे ही मिले थे, घर में सब बातचीत हुई, एक साल और निकल गया है। और I have no special attachment to a number, whether it is an age, whether it is the box office. I've never had this attachment. So to me, I'm all right. I'm doing work. I'm working hard. And I'm very happy doing what I'm doing right now. So there's nothing like 50 हो गए। मुझे फारा ने कल बोला रात को कि जब तुम सुबह उठोगे तो तब तुम्हें तब मालूम पड़ेगा। कुछ मालूम नहीं पड़ा मुझको। तो I just want to send this message out to फारा, मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा है। Shahrukh, you're turning 50, so what is special this year? As in, what are the celebrations? Any grand celebrations at home? Anything that you can share This with is us? it, yeah. I always say this, darling. On my birthday, if I don't meet you all, it's kind of wrong. And I've known all of you for now, some of you. You two must be only 25. But I've known all of you for 20 years, 22 years. And I tell my family that my birthday, you know, at a personal level, yes, I can just be at home, be with my kids. They came from school. So that was nice. I just spent time with them. But my main thing is कि मैं 2 तारीख को सिर्फ यही करता हूँ, हाथ हिलाता रहता हूँ सबको, kisses देता रहता हूँ और आप लोगों से बातें करता हूँ. So there's no special celebration really. Sorry? Does age scare you? Does my age scare you? Why should it scare me? Are you happy with your journey? 50 years journey? Yeah, I mean, overall the journey's been very good. It's been wonderful. I don't think very many people will have the life that I've got. It's been very nice here. Last 25 years of work, and before that also. Yeah, there've been good moments, sad moments, happy moments, nice moments, pathetic moments, extremely frustrating moments, but I think that's what life is. So yeah, I'm happy with the life that I have. I would not choose another life if I got a chance. Shahrukh, the question is, we have seen and observed that you are very clear about the work that you do. You do movies like Happy New Year and Chennai Express, which satisfy you as a star, and then you do movies like Chak De India and Swades and My Name is Khan that satisfy you as an actor. Fan ka teaser humne dekha. Where would you place that movie? In which genre? मैंने मतलब पिछले 25 साल में बहुत सारी फिल्में की। अच्छा नहीं लगता एक फिल्म को दूसरी फिल्म से कंपेयर करूं, लेकिन मनीष शर्मा, आदि और जितने भी लड़के लड़कियां हैं इस फिल्म के अंदर, सबके सब कहीं ना कहीं पर, आदि की बात नहीं कर रहा, बट बाकी जितने भी हैं इसमें फिल्म में, कहीं ना कहीं मुझको ये बोलते हैं कि वो दिल्ली वाले हैं या जिस जगह से भी थे। दे वॉन्टेड टू जॉइन फिल्म्स बिकॉज दे सॉ मी एंड होप्ड कि वो भी मेरी तरह यहाँ पर आकर काम कर सकें। To me, I think Fan is the most special film I've done till date. And it's not the hard work in it. It's one of those films, मुझको मालूम नहीं है मैंने सही किया है कि गलत किया है.
एज एन एक्टर, और वो सबसे बड़ी बात होती है व्हेन यू डोंट नो इफ़ आई हैव गॉट इट राइट। ये फिल्म की कहानी है कि 25 साल का फ़ैन है और 45 साल का हीरो है, और तो वो डिफरेंस जो है दोनों के बीच में दिखना चाहिए। जब आप फिल्म देखें, अभी जो सुपरस्टार है पिक्चर में उसकी शक्ल दिखाई नहीं गई, बट वो कंपैरिजन जब आएगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। बट वो फिल्म की मांग है कि मैं वो कैरेक्टर प्ले करूं तो VFX यूज़ करें। सो आई होप आई हैव गॉट इट राइट। इट्स really a difficult film to essay for me as an actor, but I think I've tried my best। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कहता था कि ज़िंदगी में ऐसी 5 फिल्में मैं बनाऊंगा जब तक मेरा करियर ओवर हो, जो मैं अपने बच्चों को दिखाऊं एंड दे फील प्राउड। आई थिंक फैन विल बी वन ऑफ देम, आई होप सो। एटलीस्ट फॉर मी इट विल ऑलवेज बी, आई डोंट नो द बॉक्स ऑफिस, आई डोंट नो द बिजनेस, आई डोंट नो व्हिच जॉनर इट फॉल्स इन, बट फॉर मी एज एन एक्टर आई थिंक आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया विकास। और शाहरुख, मेरा सवाल आपसे ये है कि वक्त बदला, दौर बदला, इन पूरे 50 सालों में सबसे बड़ा बदलाव जो है शाहरुख के लिए वो क्या होगा इन 50 सालों में? आई थिंक जेन्युइनली एक फेज़ था मेरी लाइफ में जब मेरे अपने मुझसे छूट गए, मेरे माँ बाप, और एक फेज़ है मेरी लाइफ में जब मुझको एक्स्ट्रा अपने मिल गए, आर्यन, सुहाना एंड अब्राम। तो ये जो मतलब पर्सनल लाइफ में ये 2 फेजेस मेरे लिए बहुत खूबसूरत हैं और अभी भी खूबसूरत तरीन हैं। और काम के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे लगता है मैंने काम अभी शुरू किया है, तो मुझे ही नहीं लगता मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है 25-30 दिन से काम कर रहा हूँ, तो अभी बहुत सारा काम बाकी है। सो उसके बारे में नहीं बोल सकता, बट पर्सनली आई थिंक दीज 2 वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन माई लाइफ। Dr. Shah Rukh Khan, a very happy birthday to you. This is Sohail from Glam Shamia. I just needed to ask you कि आपने मतलब 50वें बर्थडे पे सोचा है कि इस साल से शायद आप 3 फिल्में दोगे. That is from your working side actually. Beside that, what other things like maybe from the family side or other things what you having in your mind yet, like you know कि ये साल से आप यार अभी तो बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसा प्लान करूंगा कि मैं थोड़ा सा वक्त उनके साथ गुजार सकूं। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं इस बात से कि मैं अभी मुझे किसी ने 3 फिल्में ऑफ़र की नहीं है, मैं खुद ही बोलता जा रहा हूं, तो मुझे मालूम नहीं है कि 3 मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी लेकिन मुझको और मैं ऐसा मजाक से नहीं कह रहा, वो मिलनी चाहिए जो मेरा दिल करे 3 करने की, सचमुच कि मुझे खुशी हो। क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद, नॉट बिकॉज दैट्स अ लैंडमार्क, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझको ज़्यादा काम करना चाहिए वो वाला जो मेरे मन को भाए। और सो दैट्स ऑल आई विल डू यार, एंड स्पेंड एज मच टाइम एज आई कैन विद माई चिल्ड्रन। बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, सुलझे हुए हैं, तो मुझे उनके साथ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा अनलेस वो 1-2 साल के अंदर बिगड़ जाएं, फिर मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा। बट अदरवाइज राइट नाउ मुझे लग रहा है सब सेफ एंड साउंड है उनके साथ। सो आई एम गुड विद देम, आई स्पेंड टाइम विद देम, एंड अब्राम स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम विद मी, सो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। But work-wise, yes, I really want to, for the next 5 years, try and do 3 films. I hope injuries and time does not constrain me from that. But yes, I want to do 3 films a year at least. Thank you, yaar. Thank you very much. अगर आपको कभी मौका मिले अपने बचपन की दुनिया में लौटने का, तो वो कौन कौन से जगह होंगी जहां आप जाना चाहोगे, या फिर वो कौन सा वक्त होगा? जगहें दिल्ली में ही होंगी क्योंकि मैं वहाँ पे पला बड़ा हुआ 25-26 साल तक। मैं पुराना किला जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर जो आर्टिस्ट हैं, अलकाजी साहब के अंडर, मेरे फादर वहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन चलाते थे, तो मैं जाके वहाँ पर प्लेस देखा करता था। सूरज का 7वां घोड़ा, अश्वत्थामा, तुगलक, रज़िया सुल्तान, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ काम करते थे। राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी, रोहिणी हतनगड़ी, सुरेखा सीकरी, राजेश विवेक, अपने बहुत मतलब जितने फेमस एक्टर्स हमारे टाइम में हुए वो सब वहीं से शुरुआत की थी। तो मुझको लगता है मुझे चस्का एक्टिंग का वहीं पर लगा, मैं उनको जाकर देखता था। और पुराने किले में स्टेज सेट था, आई थिंक दैट्स द ओनली टाइम अ स्टेज वाज सेट। रघुवीर यादव जी थे, सो I'd like to go there and see it. अदरवाइज मेरा जो पहला घर था DDA कॉलोनी में, डियर पार्क के पास, वो मैं जा चुका हूँ एक्चुअली अपने बच्चों को लेके। एक दिन रात को मैंने वहाँ पे एक नोट भी लगा के आया था कि मैं यहाँ रहता था, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, उन्हें लगा नहीं होगा मैं आया रात को 3 बजे जाकर उनको घर दिखाया था। एंड दोज आर द फ्यू प्लेसेस आई विल विजिट बिकॉज। और एशिया 72 में मेरे फादर का छोटा सा कियोस्क था रशियन पेविलियन के सामने, जहाँ पे अभी ट्रेड फेयर अथॉरिटी का बहुत बड़ा वो सब, हम जाएंगे वहाँ पे 17 तारीख को शायद एस टेक के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे। दैट प्लेस इज़ वेरी स्पेशल टू मी, आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। मेरे फादर की चाय की दुकान थी वहाँ पे,
और छोटी सी बात बोलूँगा, और राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी सब वहाँ पे आके मेरे फादर को हेल्प करते थे चाय वाय बनाने के लिए, बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क इन दी NSD थिंग ऑल्सो, सो दे वर वेरी स्वीट। और मैं राज बब्बर जी को बब्बर शेर अंकल बोलता था। So those are memories of my parents and family. I would like to go and visit that if I can, which I will actually in a few days. बदलते वक्त के साथ शाहरुख खुद कितना बदले हैं? वो अमेरिका में कहते हैं if it ain't broke, don't fix it. So I'm not broke yet, so I don't need to fix it or change it. I'm all right. I understand. जब मैं नई फिल्में देखता हूँ, अब मेरे बड़े बच्चे हैं, लोगों से बात करता हूँ कि फिल्मों की जो भाषा है वो थोड़ी सी बदल गई है। तो एज एन एक्टर मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों के साथ काम करूँ जो मेरी भी भाषा के अंदर कुछ बदलाव ला सकें। You know, so times have changed. I started in 90s. 90s was different. 2000 is different. Now we are halfway through 2000 also. So it will be different. And hopefully there are enough interesting filmmakers who are interested in me to change. Because I'm an actor. Hopefully मैं वो सब कर सकता हूँ जो कोई भी एक्टर कर सकता है कोशिश करके, मेहनत करके. So I would like people to work with me who can make me speak in a new language as an actor, push me. I'm ready to be pushed now at 50. बहुत सारे जर्नलिस्ट या सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने आपको मैसेज भेजा है कि इस साल का जो रेजोल्यूशन होना चाहिए, शाहरुख शायद सिगरेट पीना छोड़ दें. इज इट ट्रू? छोड़ेंगे आप? हर वो आदमी मुझे ये बोल सकता है जो खुद सिगरेट नहीं पीता, तो उन जर्नलिस्ट का नाम लेकर पहले वो जर्नलिस्ट का नाम लेकर आओ जिसने खुद सिगरेट छोड़ दी है. अच्छा, आपसे मेरा सवाल ये है कि अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, आपके भी आए हैं, सक्सेस फेल्योर लगा रहता है, लेकिन हर इंसान एक ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसके चेहरे पे खुशी आती हो. कोई ऐसा काम जो शाहरुख करते हैं जिससे हर दिन उनको खुशी मिलती है? हर दिन तो नहीं, क्योंकि मैं शूटिंग करता रहता हूँ, लेकिन जब भी वक्त मिलता है अपने ऐसा गलत ना लगे यार, मेरे को समझाने तो अपने छोटे बेटे के साथ बाथरूम में नहाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को यार. और जब आदमी नहाता है तो वो कपड़े वो नहीं पहनता जो नॉर्मली पहनता है, तो वैसा उसके साथ रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है. चलेगा? शाहरुख यहाँ पर बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank We all you. love you so much. Thank you. शाहरुख, सभी स्टार्स के बहुत सारे फैंस हैं, फैन क्लब्स हैं, पर आपके जो फैंस हैं वो बहुत एक्टिव हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों. लोग कहते हैं कि अगर आपके बारे में कोई ट्वीट किया जाए तो उसके जितने रीट्वीट्स आपके फैंस करते हैं उतने आपके कॉम्पिटिटर्स जो आपके स्टार्स हैं उनके नहीं करते. इसके अलावा जो प्रैक्टिकली हम देखते पहले हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आया मेरे कंपेटिटर्स हैं कौन यार. आप कंपटीटर्स नहीं, जो आपके साथ बिल्कुल कोई भी नहीं है, लेकिन जो लोग और बॉलीवुड में बड़े स्टार्स हैं, ए लिस्टर्स हैं, उनके उतने फैन फॉलोअर्स उस तरह से नहीं रिएक्ट करते जैसे आपके रिएक्ट करते हैं. और प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं, जैसे आपके घर के सामने आकर फैंस की जिस तरह की भीड़ होती है, कल रात को जो नज़ारा देखने मिला, या हर साल आपके जन्मदिन पर होता है, या आमतौर पर मन्नत के सामने जो नज़ारा होता है, तो फैंस आपकी ज़िंदगी में क्या जगह रखते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं जो सोशल मीडिया पे फैंस हैं उनको बार बार बोलता हूँ यार, एक तो गाली गलौच मत करो, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ कि लोग जो हैं थोड़ी सी बदतमीज़ी करते हैं सोशल मीडिया पे. और ये मैं सालों से कह रहा हूँ एक्चुअली, अगर गाली किसी को देनी है, वैसे तो देनी नहीं चाहिए, और मुझे पता नहीं मुझे ये एडवाइस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, बट अगर गाली किसी को देनी है तो उसके मुंह पर दो यार. ये पीठ पीछे कुछ नाम हैंडल फैंडल के पीछे मत दो. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत घटिया बातें करते हैं हमारे बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. तो मैं अपने जो मुझे चाहने वाले हैं या प्यार करते हैं, मैं उनको फैंस कभी नहीं बोलता. उनको लगाव है मेरे साथ, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट बार बार करूँगा, लगातार करूँगा कि घटियापन मत करना यार, बाकी जो प्यार है वो बहुत अच्छा है. दूसरी बात, मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था, बहुत एक सीनियर लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी तुम्हें दुख हो उनके पास जाओ जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं. और मुझे जब भी कुछ लगता है कि मैं डाउन हूँ या क्या हूँ, अभी आज ये जो मेमोरी है मेरी कि इतने सारे लोग घर के सामने खड़े हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, और मैं उनके बीच में जब जाता हूँ जो मुझे चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है. तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो दोस्तों की क्षति है वो पूरी करते हैं, जो कमी है वो पूरी करते हैं. तो मेरे फ़ैन नहीं है, मेरे दोस्त हैं. अब मैं उनसे मिल नहीं सकता, शायद उनको शक्ल से नहीं जानता, नाम से भी नहीं जानता, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन इट कीप्स मी गोइंग कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं अनकंडीशनली.
और मैं गलती भी करूं तो उन्हें अच्छी लगती है, अच्छाई भी करूं तो अच्छी लगती है। और दोस्त का काम यही होता है कि दोस्त जो है जैसा भी करो तुम्हारे साथ रहता है। सो थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स एंड ऑल द दोस्ट्स फॉर बीइंग सो लविंग टू मी। दैट्स ऑल आई कैन से। आई थिंक ऑफ देम एज माय बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ अरसे पहले आपने बताया था कि सुहाना ने एक पेंटिंग बनाई, उस पर आर्यन ने अपना नाम लिख दिया और आपको गिफ्ट किया था बर्थडे की रात को। तो कल की रात क्या हुआ ऐसा? और कल भी आर्यन थे वहाँ, सुहाना थी, गौरी मैम थी, आप थे, तो एग्जैक्टली कैसा रहा? कुछ नहीं यार, हम एक्चुअली घर के अंदर बड़ी सिंपल सी फैमिली है यार। तो आई थिंक सारी फैमिली आई हुई थी, 2-4 लोग, 10-12 लोग आए हुए थे। और ऐसा एक सफ़ेद सा केक लेके आ गए, हमने काटा और बैठ के एक दूसरे को विश किया। बट ऐसा कुछ मतलब जैसा सिंपल घर में होता है यार जब जन्मदिन होता है। बिकॉज मुझको ऐसा लगा कि अगर मेरा, लोग को ऐसा लगता है 50वां जन्मदिन सबके साथ मनाना चाहिए। अगर मैं एक्चुअली मेरी सुबह शूटिंग है तो मुझे जाना है गोवा और शूटिंग करना है। और अगर मैं आज पार्टी करूँगा तो फिर मैं सुबह उठूँगा नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अभी अगर मैं 50वां जन्मदिन मनाऊँगा तो माशाल्लाह इतने दोस्त हैं, इतने चाहने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री से साथ में काम करने वाले कॉलीग्स हैं कि अगर मैं वो अरेंज करूँगा तो बहुत तामझाम हो जाएगा। दिल वाले के 3 दिन रह गए, मैं कहा वो पहले ख़त्म, पहले काम उसके बाद आराम। तो काम जब ख़त्म हो जाएगा फिर कुछ दोस्तों ने कहा भी हम घर आए। मैंने कहा नहीं आओ यार, मैं ये सब ख़त्म करके सिर्फ फैमिली के साथ आज रात रहूँगा। और जैसे मैंने बताया, माई चिल्ड्रन वर बैक ओनली फॉर टिल येस्टरडे, सो आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद देम। एंड नॉट दैट उनको ऐसा लग रहा था कि बाप 50 का हो गया, कुछ कमाल का दिन है ऐसा। और इस बार उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दी मुझको। वो हमेशा यही बोलते हैं जिसके पास सब कुछ है उसको हम क्या दें, बस एक हक देते हैं और एक किस देते हैं मुझको।